Today we are suffering from many acute problems by the blessings of technology. From the food we eat to the content we consume, what we are becoming is very crucial to know about. Overstimulation is becoming a new normal, which is not a normal if considered for long term. आज हम all the time इतनी सारी ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जो हमें इतनी आसानी से शॉर्ट टर्म प्लेजर दे सकती हैं और जो काम करती हैं ऑल्टरनेटिव की तरह हमारे उन सारे प्रोडक्टिव काम के जो बोरिंग होती हैं और जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस बोरिंग टास्क को छोड़ो और उन ऑल्टरनेटिव पे जाओ जो आसान हो, जो इंटरेस्टिंग हो, जैसे कि रील देख लो, जैसे कि मूवी देख लो, जैसे कि गाने सुन लो, जैसे कि घूम के आ जाओ, जैसे कुछ खा लो। Today we start doing a lot of things, but due to lack of focus and due to lack of our attention span on boring tasks, we are unable to complete them. The problem of dopamine spikes is becoming very much larger. And if this issue is not get resolved during this age, during this time, then in near future it will be very difficult to solve and get resolved. Alright, so hello everybody, Abu Talha this side, hope you are good and doing very well. In this video, I will be discussing a very different topic. I think ये एक particular group के लिए काम आने वाली है, but if you are not from that group, then still you can follow it. इसमें ज़्यादा कोई religiously नहीं है. Although my topic is कि how to get mindfulness in Ramzan, तो आप इन सारे कामों को जो है आप इस ग्रुप के बाहर रहते हुए भी कर सकते हो. So I hope it will be very helpful for you and be till the end of this video. After watching this full video, you can get a very helpful information to increase your attention span on boring tasks, increase your concentration ability and the focus capacity to reach your long-term goals. So time snaps are also given. You can jump to a certain part as well if you want. See, reward is a very natural thing. Whenever you do any task and you got pleasure, you got your cravings satisfied, then you get a sense of reward, you get a sense of pleasure, you get a sense of satisfaction, and that satisfaction and that pleasure you got because of that dopamine. Dopamine is simply a neurotransmitter in your mind. It is a feel-good hormone which is responsible for the reward system. Like suppose whenever you start scrolling reel, then every reel is very different. From every scroll you get a sense of pleasure, and whenever you get a sense of pleasure you get a dopamine spike. So dopamine simply acts as a rewarding system in our mind, which tells our mind that this action is pleasurable, repeat that so that you will be satisfying your cravings. And that task can be of any kind, from playing sports to watching reels to watching movies, or by performing any task which gives us a sense of satisfaction and pleasure. The problem is that when we start doing all those things which are not related to our long-term goals, which gives us only quick fixes, short-term pleasure and dopamine spike, then we start creating a habit and our resistance from all those boring tasks start increasing. Like suppose कि आप पढ़ने बैठते हो, आपके पास एक तरफ किताब है और एक तरफ आपके पास फ़ोन है. आप जब पढ़ने बैठते हो तो थोड़ी देर में आपको ऐसा लगता है कि योर कंसंट्रेशन इज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, राइट? तो आपका दिमाग ये कहता है कि दिस टास्क इज़ बोरिंग. इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप फ़ोन उठाओ, उसमें कोई मूवी देख लो, उसमें कोई यूट्यूब वीडियो देख लो या फिर शॉर्ट्स देख लो, जिससे कि आप बोर नहीं होगे और जो करने में आपको इंटरेस्टिंग फील होगा और जिसको करने में आपको मज़ा आएगा. और जैसे जैसे आप उस फ़ोन को यूज़ करना ज़्यादा कर देते हो, जैसे जैसे उन एक्टिविटीज़ को करना ज़्यादा कर देते हो, तो आपका इससे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है एंड एट द एंड आप किताब से बिल्कुल दूर हो जाते हो और आप फ़ोन से ज़्यादा चिपके रहते हो. आप एक ब्रेक लेते हो और वो ब्रेक आपका मेन काम और मेन टाइम से ज़्यादा बड़ा हो जाता है. आप फ़ोन चेक करने के लिए लेते हो और आप 2 घंटे जो है उसमें स्क्रॉलिंग पे निकाल देते हो, आपको पता नहीं चलता. यू स्क्रॉल माइंडलेसली फॉर आवर्स विदाउट इवन थिंकिंग कि आप वहाँ से क्या गेन कर रहे हो और उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. कि कल को आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे या फिर अभी भी आप किसी ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होगे जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा पेशेंस और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है. आपको ऐसा बनना पड़ता है कि आपको 3 घंटे 4 घंटे किसी एक कॉपी पर आपको फोकस करना है, आपको एक वीडियो लेक्चर पर फोकस करना है. तो वो करने के लिए क्या चाहिए? वो करने के लिए इस हैबिट से आपको दूर होना पड़ेगा. बट दैट हैबिट, बिकॉज ऑफ दैट हैबिट आप जो है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, या फिर अभी भी आप ऐसा फील करते हुए कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो. आप किसी अपने हसल को चुन तो लिए हो, स्टार्टिंग के 1 महीने आपके बहुत अच्छे गए और उसके बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि इट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग बोरिंग. तो वो बोरिंग है, ये बात सही है, और वो बोरिंग ही होती है. अक्सर प्रोडक्टिव टास्क आर ऑफन बोरिंग.
उनसे स्पाइक मिलती है इन लॉन्ग टर्म, जब आपको वो गोल अचीव हो जाता है। जब नीट में सिलेक्शन होती है ना, तब जो डोपामिन स्पाइक मिलती है वो एक रील देखने के लाख गुना ज़्यादा होती है। बट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट नीट आपकी डोपामिन स्पाइक मतलब ऐसा समझ लो कि वो माइनस में जा रही होती है। तो इन शॉर्ट टर्म आप एक स्क्रॉल करके उस स्पाइक को मेंटेन कर सकते हो, बट इन द लॉन्ग टर्म आप उसी रील को देखते रह जाओगे और फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो टू गेट दैट स्पाइक यू हैव टू लूज दैट स्पाइक, ऑलराइट। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि स्टार्ट डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज एक्टिविटीज विच गिव्स यू शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड एंड डोपामिन स्पाइक। और ये आपको पता होती है कि कौन सी एक्टिविटी से आपको लॉन्ग टर्म फायदे हो रहे हैं और किस एक्टिविटी से आपको सिर्फ प्रेजेंट टाइम पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, और इन लॉन्ग टर्म यू आर रीनिंग योरसेल्फ। हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं जो कि बहुत चीप हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हो उन सारे बोरिंग टास्क से, उन सारे हेल्दी टास्क, उन सारे प्रोडक्टिव टास्क से जो आपको हेल्प कर सकती थी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने में। फ्रॉम द फूड वी ईट टू द टास्क वी डू टू द कंटेंट वी कंज्यूम, इन एवरी फील्ड देयर आर ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट जो आपके प्रोडक्टिव टास्क को रिप्लेस कर सकती हैं, जिसमें आप बहुत ईजिली और बहुत ही जल्दी आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। खाने में देख लो, एक तरफ मिल्क एंड ओट्स, एक तरफ समोसे। पढ़ने में देख लो, एक तरफ बुक या फिर एक तरफ फ़ोन जिसमें लेक्चर मौजूद है और उसी फ़ोन जिसमें इंस्टाग्राम मौजूद है। कंटेंट की बात कर लो, वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट एंडलेसली, माइंडलेसली, विदाउट इवन थिंकिंग कि उस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद आप क्या बन रहे हो, आप उस कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, आपके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तरफ यूट्यूब पे 2 घंटे का लेक्चर मौजूद है और उसी यूट्यूब पर एक तरफ एक कॉमेडी नाइट का शो है, या फिर उसी फ़ोन में एक वेब सीरीज़ पड़ा हुआ है। सो दैट्स वाई आई हैव मेड दिस वीडियो कि आप इस मंथ में नेचुरली उन सारे फालतू कामों से दूर हो जाते हो, तो विद अ पर्पस उन सारे काम से दूर हो और एक हैबिट क्रिएट करो अपने अंदर कि आप फ़ोन अगर नहीं चला रहे हो तो इसलिए नहीं चला रहे हो क्योंकि यू आर क्रिएटिंग अ हैबिट ऑफ नॉट यूजिंग फ़ोन मच, नॉट स्क्रॉल माइंडलेसली, नॉट कंज्यूम कंटेंट जो कि ऐसी वाहियात हो और फिर जो आपके ना अभी काम आने वाली है और ना आपके लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है, ऑलराइट। जैसे कि ऑटोमेटिकली आप इस मंथ में जो है वो फास्ट फूड अब कम खाओगे क्योंकि आपको खाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो आप जब भी खाओगे तो हेल्दी मील खाओ और एक हैबिट के साथ खाओ कि आप ऐसे ही खाने की आदत डालोगे। आप ऑटोमेटिकली आप रील कम देखोगे, ठीक है। तो विद अ पर्पस स्टॉप वॉचिंग रील्स, कि अब एक हैबिट फॉर्म करोगे कि रील के बजाय आप किताबें पढ़ोगे, आप वैसी एक्टिविटीज़ करोगे जो कि आपको इन प्रेजेंट टाइम एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म आपको दोनों टाइम में हेल्प हो। सो दिस मंथ कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर यू इफ़ यू यूज़ इट वाइजली एंड यूज़ इट विद अ पर्पस। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। आपको बस एक ही काम करना है, नहीं आपको 2 काम करने हैं, कि आपको अवॉइड करना है उन सारे एक्टिविटीज़ से जो कि आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देती हैं, और उन टाइम को आपको फिल करना है उन ऐसे बोरिंग टास्क से जो आपको हेल्प करने वाली हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने में। सो यूज योर टाइम फॉर ए प्रोडक्टिव टास्क, क्रिएट सम गुड हैबिट्स विच विल लीड यू टू अचीव your long-term goals. So enough for this video. I hope you found this very helpful and share with someone who needs to hear this. See you in the next video. Till then, keep exploring and take care.